students, this is Radhika Kaur with the section number 7 of your chapter How Do Organisms Reproduce, and in this section we are going to discuss about sexual reproduction in plants. Obviously हम sexual reproduction के बारे में स्टडी कर चुके हैं. sexual reproduction के बाद हमने टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी कर लिया. अब बात आती है, मैंने बताया था आपको जो रिप्रोडक्शन है उसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट sexual reproduction, second sexual reproduction. So it's a time to study about sexual reproduction. So here we are first discussing about sexual reproduction in plants. But first you have to understand what is sexual reproduction. Sexual reproduction takes place by the combination of special reproductive cells called sexes. जो sexual reproduction है वो कैसे होता है? वो तब होता है जब जो sexes हैं उनका combination होता है. Clear? That sexual reproduction takes place by the combination of special reproductive cells called sexes. Clear? Also, you have to understand that there are two types of sexes. Male sexes, which are called male gametes, and female sex cells, which are called female gametes. Clear? जो sexes हैं वो दो टाइप की होती हैं. Male sex cells जिन्हें हम male gametes बोलते हैं, and female sex cells जिन्हें हम female gametes बोलते हैं. Actually, in sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote. क्या होता है sexual reproduction में एक female fuse जो female gamete है वो male gamete के साथ fuse करती है और किसका formation होता है? एक नई cell का formation होता है जिसे हम zygote बोलते हैं. Clear? That is sexual reproduction. A male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote. These zygote gametes are also sometimes called sperm cells. ये जो zygote gametes होते हैं इन्हीं को हम कभी-कभी sperm cells भी बोल सकते हैं. Clear? That in sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote, and this zygote gamete are also sometimes called sperm cells. Clear? अब बात आती है sexual reproduction in flowering plants. जो flowering plants होते हैं उनमें sexual reproduction कैसे होता है? The plants in which sex organs are carried within the flowers and seeds are enclosed in a fluid are called angiosperms. वो plants जिनमें sex organs present रहते हैं are carried within the flowers, जो flowers में present रहते हैं, and the seeds में carry किए जाते हैं, are enclosed in a fluid, वो fluids में enclosed रहते हैं जिन्हें हम angiosperms कहते हैं. Clear? That the plants in which sex organs are carried within the flowers and seeds are enclosed in a fluid are called angiosperms. Angiosperms are commonly known as flowering plants. Angiosperms क्या होते हैं? Flowering plants होते हैं. आप already discuss कर चुके हो. I mean to say आप already study कर चुके हो in I guess 9th session. So it will be easy to understand that angiosperms are the flowering plants in which sex organs are carried within the flowers and the seeds are enclosed in a fluid. Okay. So the thing is that the flowering plants reproduce by a sexual reproduction method. जो flowering plants होते हैं वो कैसे reproduce करते हैं? वो sexual reproduction method को use करते हुए उनमें reproduction होता है. This means that two sexes are involved in reproduction in flowering plants. जो flowering plants होते हैं उनमें क्या होता है? दो sex involved होते हैं और उन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही रिप्रोडक्शन उनमें हो पाता है. क्लियर? एंड द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर्स. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के वो कहाँ पे होते हैं? वो फ्लावर्स में प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? दैट द टू सेक्सेस आर इन्वॉल्वड इन द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर्स. In other words, flowers contain the sexual reproductive organs of a plant. दूसरे शब्दों में हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो प्लांट्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं. The function of a flower is to make male and female gametes and to ensure that fertilization will take place to make new seeds for the reproduction of plant. जो फंक्शन होता है फ्लावर का वो क्या होता है? जो फंक्शन है फ्लावर का वो ये रहता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है, क्लियर, वो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर कराना उसको. क्लियर? जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करें
and will take to make new seeds for the reproduction of plants. और क्या फंक्शन रहता है, जब वो फर्टिलाइजेशन करेंगे then the will take place to make new seeds, तो new seeds का फॉर्मेशन होगा for the reproduction of plants, जिससे जो plants हैं उनका reproduction easily हो जाएगा. Clear that the function of flower is to make male and female gamete and to ensure that fertilization will take place to make new seeds for the reproduction of plant. क्या फंक्शन हुआ फ्लावर का कि पहले तो वो मेल्स और फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, सेकंड वो ये इंश्योर करता है कि फर्टिलाइजेशन हो ताकि न्यू सीड्स का रिप्रोडक्शन हो पाए. क्लियर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस स्टेप्स में होता है. फर्स्ट, द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन मेक्स द मेल गैमेट ऑफ द प्लांट. दीज मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स. जो मेल ऑर्गन है फ्लावर का जिसे हम स्टेमन कहते हैं वो क्या करता है, वो मेल गैमेट्स बनाता है. क्लियर. जो मेल ऑर्गन है फ्लावर्स का स्टेमन है वो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है. यही मेल गैमेट्स जो होते हैं उन्हें हम आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स. वही पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स, यही गैमेट्स पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर. द फर्स्ट स्टेप इज दैट मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन मेक्स द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट. These male gametes are present in pollen grains. And the female organ of a plant called carpel makes the female gametes of the plant. जो फीमेल ऑर्गन होता है फ्लावर्स का जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं वो क्या करते हैं, वो फीमेल गैमेट्स बनाते हैं. क्लियर. These female gametes are present in ovules. ये जो फीमेल गैमेट्स रहते हैं वो ovules में प्रेजेंट रहते हैं. These are also called ova, axils और just eggs. इन्हें हम ओवा भी बोल सकते हैं, एक्सेल्स और एग्स भी बोल सकते हैं. क्लियर. कि स्टेमन जो है उसने मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किया और जो कार्पेल है उसने क्या किया, उसने जो फीमेल गैमेट्स हैं उनका प्रोडक्शन कर दिया. क्लियर. सो द थिंग इज द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स और एग सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स. जो मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, जो ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहता है उससे वो फर्टिलाइज कर देता है. क्लियर. दैट द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स और egg cells present in ovules. The fertilized egg cells grow within ovules and become seeds. ये जो fertilized egg cells होते हैं, क्लियर, ये जो fertilized egg cells होते हैं ये ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद में से ओव्यूल्स में ग्रो करते हैं और ये सीड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन. ये जो सीड्स होते हैं क्या करते हैं, ये न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं ऑन जर्मिनेशन. क्लियर. से सीड्स जो है वो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द जर्मिनेशन. और ये कैसे होता है, पहले फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, उसी के बाद जो जर्मिनेशन है उसके प्रोसेस के थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर. अब बात आती है जो फ्लावर है उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं. तो फ्लावर्स हैं उनमें 5 मेन पार्ट्स होते हैं, रिसेप्टिकल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल. क्लियर. रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल. So here we are discussing about receptacle first. The base of a flower to which all the parts of a flower are attached is called receptacles. Receptacles क्या होते हैं, ये फ्लावर का बेस होता है जहाँ पे जो फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच रहते हैं उसी को हम रिसेप्टिकल कहते हैं. क्लियर. फ्लावर का बेस जहाँ पे फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच रहेंगे उसे हम रिसेप्टिकल्स बोलेंगे. That is the base of a flower to which all the parts of a flower are attached is called receptacles. Sepals क्या रहते हैं? These are leaf-like structures present as the outermost circle. Sepals जो होते हैं ये leaf-like structures होते हैं जो circle है उसके outermost पे present रहते हैं. I mean to say they are present as the outermost circle. जो flower है उसका outermost circle की तरह sepals present रहते हैं. They provide protection to the bud in the initial stage. इनका वर्क क्या होता है, जो बर्ड है उसको उसकी इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सेपल्स का वर्क होता है. क्लियर. That sepals are leaf-like structures present as the outermost circle and they provide protection to the bud in the initial stage. अब बताते हैं जो पेटल्स हैं वो क्या होते हैं.
These are usually bright colors. जो petals होते हैं ये bright colored होते हैं. They protect the reproductive parts which lie inside the flower. इनका वर्क क्या होता है? ये उन reproductive parts को protect करके रखते हैं जो हमारे flower के inside present रहते हैं. Clear? That these are usually bright colored. They protect the reproductive parts which lie inside the flower. Their function is to attract insects for pollination. इनका function क्या होता है? इनका function होता है कि ये जो भी insects होते हैं उनको अपने साइड attract करते हैं ताकि pollination हो पाए. Pollination क्या होता है ये अभी हम next session में हम आपको clear करा देंगे कि pollination कैसे होता है और क्यों वहाँ पे insects को attract करने की requirement होती है. Petals के बाद आता है हमारा fourth part that is stamen. स्टेमन क्या होता है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. मैंने आपको बताया था ना कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमन होता है. क्लियर? जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है. अ सिंगल फ्लावर में हैव नंबर ऑफ स्टेमन्स इन इट. एक सिंगल फ्लावर में काफी सारे स्टेमन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मेन थिंग इज दैट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है. Stamen comprises of two main parts. जो stamen है उसमें दो main parts present रहते हैं, anther and filament. Clear? Anther is the swollen tip of stamen. stamen की जो swollen tip होती है उसको हम anther बोलते हैं. It produce pollen grains that are yellowish in color. जो anther है वो क्या करता है? pollen grains का production करता है जो yellow होते हैं color में. Clear? Filament क्या होता है? It is the stalk of the stamen that supports anther. फिलामेंट एक स्टॉक होती है स्टेमन की जो एंथर्स को सपोर्ट करके रखते हैं. क्लियर? मेन पार्ट क्या होता है? एंथर होता है क्योंकि उसी के थ्रू पॉलन ग्रेन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन फिलामेंट भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि फिलामेंट नहीं होगा तो जो एंथर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होगी. क्लियर? नाउ द थिंग इज कार्पेल. कार्पेल को हम पिस्टल भी बोलते हैं. क्लियर? इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है which is present in the center of the flower. जो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट रहती है. It comprises of three parts. ये इसमें तीन पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल. फर्स्ट स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है? It is a terminal part of the carpel which may be sticky and help in receiving the pollen grains during pollination. स्टिग्मा जो होता है ये जो हमारे कार्पेल है उसका टर्मिनल पार्ट होता है जो स्टिकी हो जाए और ये क्या हेल्प करता है? ये पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के टाइम पे रिसीव करने में हेल्प करता है. क्लियर? देन आता है हमारा टर्म स्टाइल. इट इज द मिडल elongated पार्ट ऑफ कार्पेल व्हिच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा टू द ओवरी. स्टाइल क्या होता है? स्टाइल मिडल elongated पार्ट होता है कार्पेल का जिसका हेल्प होता है कि जो स्टिग्मा है उसे ओवरी से अटैच करके रखना स्टाइल का वर्क रहता है. क्लियर? स्टिग्मा टर्मिनल पार्ट हो गया, स्टाइल जो हो गया मिडल elongated पार्ट हो गया. अब जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो है ओवरी. इट इज द swollen बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पेल. कार्पेल का जो swollen बॉटम पार्ट होता है उसे हम ओवरी बोलते हैं. which contains ovules having an axil. इसी में ovules प्रेजेंट रहते हैं जिनमें axil that is female gametes प्रेजेंट रहते हैं. The male germ cell must fuse with the female germ cell to initiate the process of reproduction in plants. Plants में reproduction के process को initiate करने के लिए क्या requirement होती है कि जो male germ cell है वो female germ cell से fuse करे. जब वो fuse करेगा तभी क्या होगा? तभी reproduction का जो process है वो initiate हो पाएगा. तो clear? अभी हमने स्टडी किया कि जो कार्पेल है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कैसे प्रेजेंट रहते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन इनिशिएट होता है. In next session, I will tell you about pollination, fertilization and germination. By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is draw a level diagram of the longitudinal section of a flower. Obviously, it is very difficult to you because you just can't draw a diagram in just 5 seconds. But by the way, you just have to make an idea in your mind that how a flower looks like. कहाँ पे फ्लावर में अभी मैंने आपको सब बताया. एंथर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टाइल कहाँ होगी, ओवरी कहाँ होगी, और जो स्टेमन है वो कहाँ होगा, जो रिसेप्टिकल्स हैं, पेटल्स हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे मैंने सब बताया ना आपको. तो आपको जस्ट इमेजिन करना है कि जो प्लांट्स हैं वो जो फ्लावर है उसमें कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा. बाय द वे आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ द फ्लावर, but till then you have to obviously imagine that and your time to start
now 1 2 3 4 5 time's up. So have you imagined it? Let's check out. Actually this is the longitudinal section of flower. Clear? Here these are the sepals. ये sepals हैं जो leaf like structures होते हैं. Clear? ये receptacles होता है. Clear? ये ovary है, ये style है और ये stigma है. तो ये क्या हुआ? Pistil, that is carpel हो गया. ठीक है, ये कार्पेल है जिसमें ये ओवेरी प्रेजेंट है जो स्वेलन पार्ट है. ये स्टाइल है जो स्टिग्मा और ओवेरी को अटैच कर रहा है और ये हमारा स्टिग्मा है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंथर्स हैं और ये फिलामेंट्स हैं. ये स्टेमन हो गया, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और उसके दोनों पार्ट्स हो गए एंथर एंड फिलामेंट. ये हमारे पेटल्स हैं जो हमारे लीफ लाइक होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनका वर्क क्या होता है कि वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं. So this is the diagram of longitudinal section of flower in which you have seen stigma, style, ovary, that is parts of pistil, enthofilament, that is parts of stamen, and petals and sepals. Also receptacle also lies there. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने फर्स्ट उसका स्टेप बाय स्टेप देखा कि जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में वो कैसे पॉसिबल हो पाता है. उसके बाद में जो फ्लावर्स हैं उनके मेन पार्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन गुड.